حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ تک مجھے پہنچانا ہے، تو اس لیے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ حضور قطب المدار پر، ان کی حیات طیبہ پر پہلی تقریر سن رہے ہوں اپنی زندگی میں، تو اس لیے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جشن غوث اعظم کیوں مناتے ہیں؟ جشن مدار اعظم کیوں مناتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اولیاء کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کا ذکر کرنا یہ رب کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، بلکہ بعض اولیاء کرام کے ناموں سے سورت کو بھی قرآن شریف میں نازل فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز، اولیاء کا ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اولیاء کا تذکرہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی خیرات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اس کی خیرات ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آخرت میں ہمیں اس کی خیرات کیسے ملے گی؟ تو احادیث کریمہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اولیاء کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جماعت اولیاء تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو جنت میں چلے جاؤ۔ اولیاء کرام کی جماعت کہے گی، اے پروردگار عالم، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ادخلتہم النار۔ اے پروردگار عالم، کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ہمارا ذکر کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ادخلتہم النار، پروردگار عالم ان کو تو تو نے جہنم میں داخل فرما دیا ہے، ہم ان کے بغیر کیسے جنت میں چلے جائیں؟ ہم ان کے بغیر کیسے جنت میں پہنچ جائیں؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کی جماعت سے فرمائے گا، یہ جماعت اولیاء جاؤ الا من عرفتم فاخرجوا، جس کو جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو، جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، اسے جہنم سے نکالو اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب تمام کے تمام اولیاء اپنے ماننے والوں کو، اپنے پہچاننے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے اور انہیں جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ غوث اعظم بھی ہوں گے، غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، غریب نواز ہوں گے، غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت مصابر پیا ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت مدار المدار پاک ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، محبوب الہی ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام اولیاء اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لیتے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے، وہاں اعلیٰ حضرت سیدی سرکار بھی موجود ہوں گے، وہاں بریلی کے تاجدار بھی موجود ہوں گے، اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار جب لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ وہاں پر وہ بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری سے کیا ملتا ہے، ان کے جلسوں کرنے سے کیا ملتا ہے، ان کی محفلیں سجانے سے کیا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ تمام کے تمام لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ایسے ماحول کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اے لوگوں، ہم نے تو دنیا میں کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا
जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ाने मोहतरम, दो चीजें पता चली। पहली चीज पता ये चली, वली का तज़किरा करना, वली का जिक्र करना, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह की सुन्नत है। और वली का तज़किरा करने से मौला तबारक व तआला दुनिया में भी इसकी खैरात अता फरमाता है और आखिरत में भी इसकी खैरात अता फरमाएगा। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज हम यहाँ पर जो बैठे हैं वो हुजूर गौसे आज़म का तज़किरा करने बैठे हैं, हुजूर कुतुबुल मदार का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार की शान, हज़रत कुतुबुल मदार का मर्तबा, हज़रत कुतुबुल मदार का मर्तबा अल्लाहु अकबर बहुत ज्यादा अजीम है, बहुत ज्यादा अजीम है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार की शान ये शान है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 596 साल की उम्र अता फरमाई। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर उनकी सीरत को लिखा जाए तो एक बहुत बड़ा दफ्तर चाहिए, और अगर उनकी सीरत को बयान किया जाए तो उसके लिए हज़ारों रातें नाकाफी होंगी। अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं आपको हुजूर कुतुबुल मदार के बारे में बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे तो दिल मदीना मदीना हो जाएगा। आप मेरी बातों को सुनिए और अपनी नजरों से हजरत शजर मकनपुरी को भी देखते रहिए और बातों को सुनते रहिए, और सारी की सारी बातों को अपने ज़हनो फिक्र वहमो गुमानो ख्याल के अंदर सेव भी करते रहिए इंशाअल्लाह ताला। और अब से आने वाली जिंदगी ऐसी जिंदगी गुजारिएगा, हजरत कुतुबुल मदार के नक्शे कदम पर चलने वाली जो जिंदगी हो। अज़ीज़ाने मोहतरम, सबसे पहले हम ये देखें हजरत कुतुबुल मदार के वालिद का नाम क्या, उनकी वालदा का नाम क्या। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद का नाम था अली हलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और आपकी जो वालिदा थी उनका नाम था हजरत फातिमा सानिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपके वालिद का जो नसब है वो इमाम हुसैन तक पहुंचता है, और आपकी जो वालिदा का नसब है वो हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, हजरत कुतुबुल मदार को इमाम हसन का भी फैजान मिला, हजरत कुतुबुल मदार को इमाम हुसैन का भी फैजान मिला। यानी आप नजीबुत तरफैन थे, गौसे आज़म भी नजीबुत तरफैन थे, गरीब नवाज भी नजीबुत तरफैन थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, और इसी के साथ साथ आपका जो नसब है उस नसब को भी समाप्त करते चलिए। आपका नसब कैसा, अज़ीज़ाने मोहतरम, आप नमस्सब सुनने से पहले जरा जी लगाकर एक मर्तबा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से साथ कह दे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा की शहजादी इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम बाक़िर के शहजादे इमाम जाफर अस्सादिक के शहजादे हजरत इस्माइल अव्वल के शहजादे हजरत मोहम्मद के शहजादे हजरत इस्माइल अस्सानी के शहजादे हजरत ज़हीरुद्दीन के शहजादे हजरत बहाउद्दीन के शहजादे हजरत कुदवतुद्दीन के शहजादे वही हैं जिन्हें आज सारी दुनिया कुतुबुल मदार के नाम से जानती है, वही हैं जिन्हें आज सारी दुनिया मदार आज़म के नाम से जानती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला कब पैदा हुए? अज़ीज़ाने मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला 242 हिजरी को पैदा हुए। हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला यकुम शव्वाल को पैदा हुए, 242 हिजरी को पैदा हुए। यकुम शव्वाल कौन सा दिन होता है? यकुम शव्वाल ईद का दिन होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरा विश्वास कहता है अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत कुतुबुल मदार की शक्ल में यानी ईद के दिन उन्हें पैदा करके सारी की सारी दुनिया को अल्लाह ने ईद अता फरमा दी थी, ईद का तोहफा अता फरमा दिया था। और आपकी वालिदा फरमाती है जैसे ही मेरा शहजादा पैदा हुआ यानी अहमद पैदा हुए यानी बदियुद्दीन पैदा हुए, तो मैंने क्या देखा, मेरा जो हुजरा था वो नूर से मामूर हो गया, वो नूर से मुअत्तर हो गया, मैं नूर के जलवे देख रही थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, और होगी क्यों ना आला हज़रत सज्जदी सरकार इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बड़ा अच्छा माशाअल्लाह।
عزیزان محترم، حضرت قطب المدار کی شان، حضرت قطب المدار کا مرتبہ، اللہ اکبر. آپ پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کے والد نے آپ کا جو نام رکھا وہ آپ کا نام احمد رکھا، آپ کا نام بدیع الدین رکھا. عزیزان محترم، اور پھر ساری کی ساری دنیا نے آپ کو قطب المدار کے نام سے جانا، مدار پاک کے نام سے جانا، مدار اعظم کے نام سے جانا. عزیزان محترم، آپ کے جو والد تھے وہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کے ولی تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی. کہتے ہیں نا ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا، ڈی این اے ٹیسٹ کا کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ لگایا جاتا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں. عزیزان محترم، کب پتہ لگایا جاتا ہے، کیسے پتہ لگایا جاتا ہے؟ ارے ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے تب نہ پتہ لگایا جاتا ہے. تو حضرت قطب المدار کی شان وہ شان تھی، آپ کا مقام وہ مقام تھا کہ آپ کے اندر سمجھ لیجئے امام حسین کے بھی جلوے تھے، آپ کے اندر امام حسن کے بھی جلوے تھے، آپ کے اندر حضرت فاطمہ کے بھی جلوے تھے، آپ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جلوے تھے. عزیزان محترم، آپ کی جو پرورش ہوئی علمی خاندان میں پرورش ہوئی، آپ کی جو پرورش ہوئی علمی خاندان میں پرورش ہوئی. عزیزان محترم، عزیزان محترم، اور آپ کی عمر شریف جب بڑھتے 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 عزیزان محترم 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی ملک شام کے ایک بہت بڑے امام، ملک شام کے ایک بہت بڑے علامہ، ان کا نام تھا حضرت حذیفہ مراعشی الشامی رضی اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑے امام تھے، یہ بہت بڑے علم والے تھے. ان کے پاس آپ کے والد لے کر جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے چلیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ یہ کہاں پیدا ہوئے، یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ ملک شام کے رہنے والے تھے. ملک شام کا ایک شہر ہے حلب، اس کے رہنے والے تھے، اور اس حلب کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جنار، اس کے رہنے والے تھے. عزیزان محترم، آپ کے والد کو، آپ کے والد 4 سال کی عمر کے اندر آپ کے والد حضرت حذیفہ شامی کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. عزیزان محترم، یہاں سے سب سے پہلا پیغام حضرت قطب المدار کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے، جب ہمارے بچے 4 سال کے ہو جائیں تو ہمیں ان کی رسم بسم اللہ خوانی کرانا چاہیے، ان کی رسم بسم اللہ خوانی کو ادا کرانا چاہیے، ہمیں علماء کو بلانا چاہیے، ہمیں مسجد کے امام کو بلانا چاہیے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اہل سنت کا طریقہ، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ. عزیزان محترم، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضور تاج الشریعہ کی رسم بسم اللہ خوانی کب ہوئی؟ آپ کے والد نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کو کب ادا کروایا؟ جب آپ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہو گئے تب آپ کی بھی رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوئی. ہو سکتا ہے حضور قطب المدار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے ان کے والدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ کے والدین نے بھی ایسا کیا ہو. 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے اندر آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کو ادا کرایا گیا. عزیزان محترم، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. پھر حضرت قطب المدار نے کیا کیا؟ قرآن عظیم والفرقان حمید کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا. عزیزان محترم، بہت چھوٹی سی عمر کے اندر حضرت قطب المدار قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف قرآن کے حافظ بلکہ توریت کو بھی حفظ کر لیتے ہیں، زبور کو بھی حفظ کر لیتے ہیں، انجیل کو بھی حفظ کر لیتے ہیں، قرآن کو بھی حفظ کر لیتے ہیں. قطب المدار کی شان، یہ شان اللہ اکبر، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو حفظ کر لیا. اللہ اکبر، آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب آپ کی عمر سمجھ لیجئے 14 سال کی ہو گئی، آپ علوم عقلیہ کے بھی ماہر ہو گئے، آپ علوم نقلیہ کے بھی ماہر ہو گئے، آپ علوم شریعہ کے بھی ماہر ہو گئے. عزیزان محترم، اور حضرت مختوم سمنانی علیہ رحمت رحمان اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہی تک بس نہیں بلکہ آپ علم کیمیا کے بھی ماہر ہو گئے، آپ علم کیمیا کے بھی ماہر ہو گئے، آپ علم سیمیا کے بھی ماہر ہو گئے، آپ علم کیمیا کے بھی ماہر ہو گئے. عزیزان محترم، علم کیمیا کے علاوہ یہ سارے علوم وہ علوم ہیں جن کے نام آج پہلی بار سن رہے ہو گئے. میں نے بھی جب پڑھا، میں نے بھی ان علوم کو پہلی مرتبہ پڑھا. عزیزان محترم، جن علوم کے آج دنیا نام نہیں جانتی ہے
है कुतुबुल मदार उनको मुकम्मल हासिल कर लेते हैं, उनके अंदर समझ लीजिए पाए इस्तिकामत को मजबूत कर लेते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। और उसके बाद जब 14 साल की उम्र हुई, आपने तालीम को हासिल कर लिया। तालीम को हासिल करने के बाद आप वापस अपने घर आ जाते हैं, लेकिन फिर दिल में यह ख्याल पैदा हुआ किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाया जाए, किसी अल्लाह के वली की बारगाह में कुछ दिनों को गुजारा जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के सोहबत को इख्तियार करो। हज़रत कुतुबुल मदार ने उसके बाद जो है अपने वालिदैन से कहा मैं हज करने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं हरमैन जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम इजाजत मिल जाती है। अब जब रास्ते से चले उसके बाद जो है कुछ दूर चले, अज़ीज़ान मोहतरम फिर में ख्याल पैदा हुआ पहले जो है क़िबला अव्वल की ज़ियारत कर ली जाए, पहले बैतुल मुक़द्दस हाज़िरी दे दी जाए, उसके बाद जो है हरमैन शरीफैन चलेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम अब आपने अपने सफर का रुख बदल दिया, आप बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर पहुंचे। बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर पहुंचे हैं तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा से आपकी मुलाकात हुई। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी गोया कि आपके इंतजार में हो। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से मुलाकात होना थी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने आपको अपना मुरीद बना दिया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने फिर क्या किया, अपने जरिए आपके तरीके को, आपके रास्ते को या आपके सिलसिले को समझ लीजिए, अपना हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने आपके सिलसिले को हज़रत अल हबीब अजमी से जोड़ा। हज़रत हबीब अजमी ने आपका सिलसिला समझ लीजिए हज़रत हसन बसरी से जोड़ा, और हसन बसरी ने आपका सिलसिला हज़रत अली से जोड़ा, और हज़रत अली ने आपका सिलसिला रसूलुल्लाह से जोड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम ये आपके सिलसिले की शान, ये आपके सिलसिले का मकाम। अज़ीज़ान मोहतरम आप हिंदुस्तान के अंदर तमाम बुजुर्गों को पढ़ डालिए अज़ीज़ान मोहतरम, और मैंने भी तमाम बुजुर्गों को पढ़ा अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन हज़रत कुतुबुल मदार का सिलसिला वो सिलसिला है जो सिर्फ 3 वास्तों के जरिए रसूलुल्लाह से मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे अहले सुन्नत, मसलक अला हज़रत, मज़हब इस्लाम, अज़मत औलिया किराम, अज़मत गौसप्पा, दम मदार, दम मदार, दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम और इसी के साथ साथ आपने हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में रहकर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक आपकी खिदमत की, और उसके बाद जो है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का विसाल हो जाता है, आप उनका विसाल हो जाता है। उसके बाद हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला वापस अपने घर आ जाते हैं, वापस अपने घर आकर रहने लग जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम फिर क्या था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत कुतुबुल मदार के ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं अहमद बदरियुद्दीन आओ आओ हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए आओ, मदीने की ज़ियारत के लिए आओ, मक्के की ज़ियारत के लिए आओ। अज़ीज़ान मोहतरम हर एक मुसलमान मदीने जाना चाहता है, हर एक मुसलमान हरमैन की ज़ियारत करना चाहता है, हर एक मुसलमान गुंबद खज़रा को देखना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम मगर हज़रत कुतुबुल मदार की शान, हज़रत कुतुबुल मदार का मकाम, हज़रत कुतुबुल मदार का मर्तबा, अल्लाह अकबर, हर एक मुसलमान मदीना जाना चाहता है, मगर मदीने वाले कुतुबुल मदार के ख्वाब में आते हैं और स्पेशल तरीके से इनवाइट करते हैं अहमद बदरियुद्दीन हरमैन की ज़ियारत के लिए आओ, मदीने की ज़ियारत के लिए आओ। अज़ीज़ान मोहतरम जब बेदार होते हैं समझ लीजिए मदीने की याद सताने लगती है, मदीने वाले की याद सताने लगती है। और उसके बाद आपने अपने वालिदैन से कहा मैं हरमैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, और मैं जो है मैं हरमैन तैयबैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, आप हमें इजाजत दे दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम और उसी के साथ साथ हज़रत कुतुबुल मदार ने ये भी कहा और मैं आपसे एक इजाजत और ये चाहता हूँ, मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, मैं लोगों तक दीन पहुँचाना चाहता हूँ, मैं लोगों तक दीन की बातों को पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे इसकी भी इजाजत दे दें। अज़ीज़ान मोहतरम ये मुलाकात हज़रत कुतुबुल मदार की अपने वालिदैन से ये आखिरी मुलाकात थी। अज़ीज़ान मोहतरम
मोहतरम कुतुबुल मदार गोया कि ये कह रहे हो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बहुत बड़े मिशन के लिए पैदा किया है, मैं जो इस दुनिया में आया हूँ वो एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया हूँ, इसलिए आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। हजरत कुतुबुल मदार के 3 भाई और थे, आपके वालिदैन ने आपको इजाजत दे दी। अज़ीज़ान मोहतरम ये आपकी वालिदा की आखिरी मुलाकात थी। आपकी वालिदा ने भीगी पलकों के साए में आपको रवाना किया और कहा बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम अता करे, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत मर्तबा अता करे, जाओ और खूब दीन का काम करो, जाओ और खूब दीन की तबलीग करो। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला हरमैन शरीफैन के इरादे से चले, मक्का शरीफ पहुंचते हैं, हज के तमाम अरकान अदा कर लेते हैं। तमाम हज के अरकान पूरे करने के बाद अब कुतुबुल मदार कहाँ जा रहे हैं? अब रोज़ाए रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कुतुबुल मदार का विजदान कह रहा हो, वही कह रहा हो जो आला हजरत सैयदी सरकार ने हमें बताया। आला हजरत क्या बताते हैं? आला हजरत के ही बताते हैं हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गौर से सुन थोड़ा सा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन थोड़ा सा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हज़रत फरमाते हैं उसके सुफेल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके सुफेल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है, असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है। और आला हज़रत फरमाते हैं होते कहाँ खलील बिना काबा ओ बिना, होते कहाँ खलील बिना काबा ओ बिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत कुतुबुल मदार अब कहाँ जा रहे हैं? मदीने तैयबा के लिए जा रहे हैं, मदीने शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम कुतुबुल मदार सफर करते करते मदीने तैयबा पहुंच चुके हैं। ये वही मदीना है जिसके ताल्लुक से फाज़िल फरैनी ने कहा था हरम की ज़मीन और कदम रखे चलना, हरम की ज़मीन और कदम रखे चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला रोज़ाए रसूल पर पहुंचते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम आपकी सीरत में लिखा हुआ है, किताबों के अंदर दर्ज है। जैसे ही हज़रत कुतुबुल मदार रोज़ाए रसूल पर पहुंचे हैं, अदब के साथ कुतुबुल मदार ने जब कहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इतना कहना था सरकार की रहमत जोश में आ जाती है। बीच में जितने भी पर्दे आए थे, बीच में जितने भी पर्दे डले हुए थे, जितने हिजाबात थे उन तमाम हिजाबात को उठा दिया गया और सरकार अपनी कब्र से साइर होते हैं। और कुतुबुल मदार ने सरकार को देखा। हो सकता है कुतुबुल मदार ने कहा हो अल्लाह की सरसबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता कि मेरी जान है ये। नूरी साहब किबला नारे तकबीर, नारे निसात। कुतुबुल मदार ने जैसे ही सरकार को देखा होगा, अज़ीज़ान मोहतरम अल्फाज कुछ भी रहे हो, उनकी ज़बान कुछ भी रही हो, मगर मफ़हूम यही होगा जो फाज़िल फरैनी ने बताया। मफ़हूम यही था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम ये मकाम हज़रत कुतुबुल मदार था, ये शान हज़रत कुतुबुल मदार की। उसके बाद आप मदीना रहते रहे और उसके बाद फिर सरकार आपके ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया बेटा अब तुम्हें यहाँ से नजफ की सरजमीन पर पहुंचना है, हजरत अली की बारगाह में हाजिरी देना है। हजरत अली की बारगाह में पहुंचकर वहां से फैजान को हासिल करो। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली की बारगाह में पहुंचते हैं और फैज हासिल करते हैं और वहां से दुआएं लेकर हजरत कुतुबुल मदार अब हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम समंदर के जहाज के जरिए आए, समंदरी रास्ते के जरिए आए, आप कश्ती में सवार हो जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम कश्ती जब समंदर में चलने लग जाती है, हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए भेजा ताकि आप तबलीग करें। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार ने जब तमाम लोगों को देखा कि ये मुसलमान नहीं है, हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला ने कुरान अज़ीम वल फुरक़ान हमीद की आयत पर अमल करते हुए कुरान कहता है वदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़ति
मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, भलाई के साथ खैर के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाओ, अच्छे तरीके से तबलीग करो। हज़रत कुतुबुल मदार ने बड़े प्यार से उनको दीन की तरफ बुलाया, बड़े प्यार से उनके सामने क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की दावत को रखा। मगर वो लोग क्या करने लगे, हज़रत कुतुबुल मदार के दुश्मन हो गए, हज़रत कुतुबुल मदार के ताल्लुक से साजिशें करने लगे। हज़रत कुतुबुल मदार के ताल्लुक से उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से इस नौजवान को हम उठाएंगे और उसके बाद समंदर में फेंक देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना सोचना था, इतना विचार करना था, इतना षड्यंत्र रचना था। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए मैं आपको पहले हदीस सुना देता हूँ। हदीस सुनने से पहले जी लगाकर बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैहि मिम्मा इफ़्तरतु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लउतियन्नहु व लइन इस्तअज़नी लउईज़न्नहु व मा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मुमिन यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। हदीस के नाम पर पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और झूम के बोले सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस का मफ़हूम ये है कि जब कोई किसी वली से समझ लीजिए अदावत रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ऐलान जंग फरमा रहा है। और इन लोगों ने क्या किया, एक वली के ताल्लुक से बुरा ख्याल लेके दिल में आए और वली के ताल्लुक से षड्यंत्र रच रहे थे। फिर क्या था, अल्लाह का कहर इस तरीके से नाज़िल हुआ, उस समंदर के अंदर तूफान आ जाता है और जितने के जितने लोग षड्यंत्र रच रहे थे वो सारे के सारे गरकाब हो जाते हैं, वो सारे के सारे पानी में डूब जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला उसी कश्ती के एक तख्ते पर सवार हो जाते हैं और समझ लीजिए समंदरी सफर तय करते 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 कई दिनों के बाद हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला हम बात की बंदरगाह पर पहुंचते हैं, गुजरात की सरजमीन पर पहुंचते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान की सरजमीन ने, जिस जमीन ने सबसे पहले हज़रत कुतुबुल मदार के कदमों को चूमा, वो जमीन समझ लीजिए गुजरात की सरजमीन। हज़रत कुतुबुल मदार जैसे ही गुजरात की सरजमीन पर आए हैं, जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं, कई दिन का समंदर का सफर था। अज़ीज़ान मोहतरम, आपका जो लिबास था वो समझ लीजिए पानी की वजह से पोशीदा सा हो गया था, आपका जो जिस्म था वो एक तरीके से मुज़महिल सा हो गया था। अल्लाह अकबर। हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला ने उस वक्त दुआ की थी, हे परवरदिगार आलम, हे रब्बे करीम, मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ, मौला ना मुझे कभी भूख लगे, मौला ना मुझे कभी प्यास लगे, मौला ना कभी मेरा लिबास गंदा हो। क्योंकि हज़रत कुतुबुल मदार ने जब हिंदुस्तान के हालात को देखा होगा ना तो कुतुबुल मदार भाप गए होंगे, समझ गए होंगे बहुत काम की जरूरत है, बहुत चलने की जरूरत है, एक एक आदमी तक दीन पहुंचाने की जरूरत है। अब समझ लीजिए कपड़े धोने में टाइम ना निकल जाए, अब समझ लीजिए खाने में टाइम ना निकल जाए, अब समझ लीजिए पानी पीने में टाइम ना निकल जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत हिज़्र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आपको सरकार मदीना की बारगाह में ले जाया जाता है और सरकार की बारगाह से आपको एक लिबास अता किया जाता है और कहा जाता है कुतुबुल मदार इस लिबास को पहन लोगे अब जिंदगी भर तक कोई मैल, कोई कुचैल, कोई जिंदगी तुम्हारे लिबास तक नहीं आएगी, तुम साफ और शफाफ रहोगे। और तुम्हारे लिबास को अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई है, ऐसा मकाम अता फरमाया है। कुतुबुल मदार अरे जब तुम्हारे दामन से जुड़ जाएगा मौला उसे भी पाक बना देगा, मौला उसे भी साफ बना देगा, मौला उसे तैयब मौला उसे तैयब ताहिर कर देगा। और सरकार की बारगाह से खीर की कुछ चमचियां आपको खिलाई गई। अल्लाह अकबर। अब ये कहा गया कुतुबुल मदार, अब ये जो खाना तुमने खा लिया है ना, अब जिंदगी में ना तुम्हें कभी भूख सताएगी, अब जिंदगी में ना तुम्हें कभी प्यास सताएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, गोया के मफ़हूम कुछ इस तरीके से था, इंसान इस दुनिया में खाने का मोहताज होता है, इंसान इस दुनिया में पानी का मोहताज होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर कुतुबुल मदार की शान ये शान बना दी गई। अल्लाह अकबर। हातिम गैबी इस बात को कह रहा था, कुदरत इस बात को कह रही थी, एक कुतुबुल मदार दुनिया का इंसान खाने
کھانے کا محتاج ہوگا، پانی کا محتاج ہوگا، مگر اس دنیا کے کھانے اب تمہارے محتاج ہوں گے، اس دنیا کے پانی تمہارے محتاج ہوں گے۔ تم کھانے کے محتاج نہیں ہوگے، تم پانی کے محتاج نہیں ہوگے۔ بخاری کی حدیث ہے نا، آقا نے تو ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ ارے جب اللہ کا ولی کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے ضرور اس چیز کو دے دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ کون سا سن ہجری تھا؟ یہ ہجری کا سن تھا 282 سن ہجری تھا۔ عزیزان محترم، گویا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر حضرت قطب المدار تشریف لائے تھے، اس وقت قطب المدار 40 سال کے ہو چکے تھے۔ عزیزان محترم، یہ 3ری صدی ہجری کا دور تھا، یہ 3ری صدی ہجری کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام بخاری کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام مسلم کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ترمذی کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ابو داؤد کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ امام ابن ماجہ کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ یحییٰ ابن معین کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ اسحاق ابن راہویہ کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابو زرع حاتم ابو زرع رازی کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ بڑے بڑے محدثین کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابو جعفر الطبری کا دور تھا۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ ابن خزیمہ کا دور تھا۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے محدثین، اتنے بڑے بڑے فقہاء، اتنے بڑے بڑے تاریخدان، عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام لوگ دین کی خدمت کو کیسے انجام دے رہے تھے؟ ان تمام کا قلم چل رہا تھا۔ بخاری کا قلم چل رہا تھا، مسلم کا قلم چل رہا تھا، ترمذی کا قلم چل رہا تھا، ابو داؤد کا قلم چل رہا تھا، نسائی کا قلم چل رہا تھا، ابن ماجہ کا قلم چل رہا تھا، ابو جعفر الطبری کا قلم چل رہا تھا، ابن جریر کا قلم چل رہا تھا، ابن اسحاق راہویہ کا قلم چل رہا تھا۔ عزیزان محترم، ان تمام کے قلم چل رہے تھے اور قطب المدار کا صرف قدم چل رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اولیاء کرام، شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ان محدثین نے قلموں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی، دین کی خدمت کی، اور قطب المدار نے اپنے قدموں سے دین کی خدمت کی، اپنے قدموں سے دین کی تبلیغ کی۔ ہم کہتے ہیں نہ قلم والوں کا کوئی جواب ہے اور نہ قدم والوں کا کوئی جواب ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان تھی قطب المدار کی، یہ مقام تھا قطب المدار کا۔ اور اس کے بعد حضور قطب المدار کی اگر آپ خانقاہیں دیکھیں گے نا تو 3 لاکھ سے زیادہ خانقاہیں۔ قطب المدار کے اگر چلوں کو دیکھیں گے، ویسے تو بہت چلے، مگر جن چلوں کی فہرست بنائی گئی، جن کو جا کر دیکھا گیا، وہ 1442 سے زیادہ چلے، 1442 سے زیادہ چلے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر قدرت نے ایک ایسے کنویں کا بھی اہتمام فرمایا، ایک ایسے کنویں کا بھی اہتمام فرمایا کہ جو کنواں ہر ایک پیاسے کے پاس جائے، جو کنواں ہر ایک پیاسے کے پاس جائے، جس کا فیضان عرب میں بھی بڑھ رہا ہو، جس کا فیضان عجم میں بھی بڑھ رہا ہو، جس کا فیضان افغانستان میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان ریگستان میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان راجستھان میں بھی برس رہا ہو، ہمیں کہہ لینے دو، جس کا فیضان پورم میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان پچھم میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان اتر میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان دکن میں بھی برس رہا ہو۔ عزیزان محترم، ایسی کوئی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف حضرت قطب المدار کی شخصیت نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، حق ادا کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فیضان مزار العالمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیزان محترم، اور اس وقت جب قطب المدار آئے تھے نا تو ایسا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، ایسی محفلیں کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب سوچئے
अब थोड़ा सा सोचिए कैसा दौर रहा होगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए सरकार से बिल्कुल करीब का दौर, 300 साल ही गुजरे हैं अभी, कैसा दौर रहा होगा। मगर आज जो नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं, जो नारे रिसालत के नारे लग रहे हैं, ये हजरत कुतुबुल मदार के फैजान, समझ लीजिए हजरत कुतुबुल मदार का फैजान है, हजरत कुतुबुल मदार का सदका है। और कुतुबुल मदार समझ लीजिए बैठे नहीं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अजीदान मोहतरम, चिल्ले आपने किए, सरकार भी जाते थे ना गारेरा में। अजीदान मोहतरम, कोई भी ऐसी बस्ती हो जहाँ साथ में पहाड़ी लगी हो या यहाँ पर कुछ लोग रहते हों, अजीदान मोहतरम वहाँ आपको कुतुबुल मदार का चिल्ला जरूर मिल जाए। अब बहुत से निशानात ऐसे रहे कि हम उनकी हिफाजत ना कर सके। ग्वालियर की सरजमीन पर हजरत कुतुबुल मदार के 2 चिल्ले मौजूद हैं अजीदान मोहतरम। और जब आप चिल्ले से बाहर आते तो आपकी कैफियतें ऐसी होती कि कोई आपको देख नहीं सकता था, कोई आपको देख नहीं सकता था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा और दीगर उलमा ने लिखा कि अगर कोई देख लेता, अरे इंसान तो छोड़ो जानवर देख लेता वो सजदे में गिर जाता। ये कैफियतें आपके चेहरे की, तो आप चेहरे पर पर्दा डाल के रखते। बहुत अहम जुमला है, गौर से सुनिएगा। चेहरे पर पर्दा डाल के रखते। अरे दुनिया जिसका सागिर ना देख सके, दुनिया जिसका सागिर ना देख सके, बताओ दुनिया उसका बातिन कैसे देख सकती है? दुनिया उसका बातिन कैसे देख सकती है? असीदान मोहतरम, कुतुबुल मदार जो है दीन की खिदमत करते रहे और सूरत की सरजमीन पर पहुंचे। सूरत की सरजमीन बंदरगाह है, वहां से उस वक्त लोग हज करने वाले जाते थे। एक शख्स, एक अल्लाह के वली जिनका नाम था हजरत शेख लाहौरी, वो भी हज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां हजरत कुतुबुल मदार को देखा तो देखते रह गए। जी लगा कर बोलो, देखते रह गए, सोचने लगे, अरे नवासे के हुस्न का ये आलम है, नवासे के हुस्न का ये आलम है, तो फिर नाना के हुस्न का आलम क्या है? इसीलिए तो बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। और आला हज़रत फरमाते हैं बकमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, बकमाले हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल हार से दूर हैं, यही शमा है कि धुआं लगी। सीदाने मोहतरम, देखा तो देखते रह गए। और उसके बाद क्या था? आप तो हज करने के लिए जा रहे थे ना, वो जो जहाज था, वो जो पानी की कश्ती थी, वो रवाना हो जाती है, वो साहिल को छोड़ देती है। और उसके बाद जैसे ही इनके दम में दम आया, जैसे ही इनके दम में दम आया, समझ लीजिए ये हैरान हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं। हजरत कुतुबुल मदार फरमाते हैं क्या बात है, क्या मामला है, क्यों परेशान हो रहे हो? शेख लाहौरी कहते हैं हुजूर दरअसल ऐसी बात है, मैं हज करने के लिए जा रहा था, मैं हरमैन तैयबैन की ज़ियारत के लिए जा रहा था, और बस क्या था, आपको देखा और देखता रह गया, मेरा जहाज छूट गया, मेरी कश्ती छूट गई, अब क्या होगा, अब मैं कैसे पहुंचूंगा? बस इसलिए जो है थोड़ा सा मुतफक्किर हूं, इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह की वली की बारगाह वो बारगाह होती है, यहाँ जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, उसके दामन को भर दिया जाता है। हज़रत कुतुबुल मदार फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आओ जरा मेरे थोड़े इधर को आ जाओ। वो सामने खड़े थे, शेख लाहौरी जैसे यूं चलते चलते इधर आए, हज़रत कुतुबुल मदार ने शेख लाहौरी का हाथ पकड़ लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद कुतुबुल मदार ने कहा अल्लाहु अकबर, इतना कहना था
हजरत शेख लाहौरी की आंखें बंद हो गई और उसके बाद जब आंख खुली है तो आंखें फटी की फटी रह गई। अल्लाह अकबर। शेख लाहौरी कहते हैं मैं सूरत की बंदरगाह पर नहीं बल्कि मैं मक्का शरीफ पहुंच चुका था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नह, औलियाए किराम, अज़मत औलियाए किराम, अज़मत औलियाए किराम, सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा सा दम आप में नजर नहीं आ रहा है, जरा बोलो मिलकर दमदार, और जी लगा कर बोलो दमदार, दमदार। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो नारा है ना, ये नारा भी असल में पहले दमे मदार था। पहले क्या था? ये असल में दमे मदार बेड़ा पार, ठीक है ना। फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से ये दम मदार बेड़ा पार हो गया, दम मदार बेड़ा पार हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं दम मदार मतलब मदार के दम से, मदार की ताकत से, मदार के पावर से हमारा बेड़ा पार हो जाए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं मदार के पावर से कैसे पार हो जाएगा बेड़ा? मदार क्या कर सकते हैं, वली क्या कर सकते हैं? तो हम कहेंगे सुनो, कुरान को पढ़ो, सूरह तहरीम को पढ़ो, आयत नंबर 4 को पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मोमिनीना वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीरा। अल्लाह भी मदद फरमाता है, जिब्रील भी मदद करते हैं, फरिश्ते भी मदद करते हैं और अल्लाह के वली भी मदद करते हैं। अरे जब वली मदद करते हैं तो बता कुतुबुल मदार क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? कुतुबुल मदार क्यों नहीं मदद कर सकते हैं? अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये कुतुब कहते किसे हैं? ये कुतुब किसे कहते हैं? बहरुल मानी के अंदर है और तफसीर रूहुल बयान के अंदर भी है। सूरह नबा की तफसीर को आप पढ़ेंगे, उसके अंदर भी मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक कुतुब की शान ये होती है, उसका दर्जा वली से ऊपर होता है। वो जब चाहे कुतुब जिस वली की चाहे विलायत को सल्ब कर ले। ये कुतुब की शान, ये कुतुब की शान। और कुतुबुल मदार की शान, वो जब चाहे किसी भी कुतुब की कुतुबियत को सल्ब कर ले। वो जब चाहे किसी भी कुतुब की कुतुबियत को सल्ब कर लें। ये मकाम है कुतुबुल मदार का। अरे जब एक लम्हे में कुतुबियत छीन लें, विलायत छीन लें, तो हमारा भी साफ कहता है अरे जो एक लम्हे में विलायत छीन सकते हैं, कुतुबियत छीन सकते हैं, तो एक लम्हे में वली भी बना सकते हैं और कुतुब भी बना सकते हैं। माशाअल्लाह। तिर्मिज़ी की हदीस है, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी सुननिही। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, क्योंकि मोमिन जब देखता है तो मोमिन तो अल्लाह की नूर से देखा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, शेख लाहौरी को हजरत कुतुबुल मदार ने कहाँ पहुँचा दिया? कहाँ पहुँचा दिया? मक्का शरीफ। 6 महीने तक वहीं रहे, 6 महीने तक, 6 महीने तक वहीं रहे। हज कर लिया, सब कुछ अरकान अदा कर लिया, फिर सोचने लगे आ तो कुतुबुल मदार की वजह से गया था, अब वापस वतन कैसे जाऊंगा, अब वापस कैसे जाऊंगा? अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ कुरान ने पुकारने को कहा है ना मदद करते हैं, तो यहाँ से ये भी समझ में आ जाता है अरे मदद तो वही करेगा जो ये भी जानता हो कि मुझे पुकार कौन रहा है, मुझसे जो है मदद कौन तलब कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी कहा भी नहीं था, दिल में सोचा जी था, कहा भी नहीं था, दिल में सोचा ही था। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से एक चीज़ और बयान कर देता हूँ, उलमा बयान करते हैं, कभी भी आपको आप जो है रसूलुल्लाह के जलवों को महसूस करना चाहें, अपने आका के जलवों को महसूस करना चाहें, तो एक कागज़ पर पहले अपना नाम लिखें, उसके बाद कुतुबुल मदार का नाम लिखें, फिर रसूलुल्लाह का नाम लिख दें और वहीं बैठ जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब दिल
ज़हन, फिक्र, वहम, गुमान के अंदर कुतुबुल मदार रहेंगे, फिर क्या होगा? सरकार का फैजान आप पर जारी व सारी होता हुआ नजर आएगा। आप महसूस करेंगे, महसूस। वरना तो आप जाइएगा, आप जलसे के बाद घर पर जाकर ऐसा कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप कुतुबुल मदार के फैजान को महसूस करते नजर आएंगे। मैंने कुतुबुल मदार की सीरत को पढ़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, कुतुबुल मदार समझ में तो आते ही नहीं है। कुतुबुल मदार समझ में तो आते ही नहीं हैं, कुतुबुल मदार दिल में आते हैं। कुतुबुल मदार को समझने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं समझ पाओगे, दंग रह जाओगे। उम्र ही 596 साल की, ठीक है नहीं, इसी में ही दंग रह जाओगे। इतनी उम्र कैसी, इतनी लंबी उम्र कैसी? तो मेरा बताने का मकसद ये है, दिल में आएंगे, समझ में नहीं आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत शेख लाहौरी ने जैसे ही दिल में पुकारा और सोचा, आ तो हुजूर आपकी वजह से गया था, अब यहाँ से जाऊंगा कैसे? अल्लाह अकबर। फिर क्या था? हज़रत शेख लाहौरी ने कुतुबुल मदार का वहाँ पर दस्त देखा, कुतुबुल मदार का वहाँ पर हाथ देखा। हज़रत कुतुबुल मदार ने वापस शेख लाहौरी का हाथ पकड़ा और उसके बाद एक बार अल्लाह कहा, अल्लाह अकबर। वापस शेख लाहौरी मक्का शरीफ से अपने वक्त पहुंच जाते हैं। अरे जो एक सर्प ने सूरत से मक्का पहुंचा दें, सूरत से मक्का पहुंचा दें। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आज भी उनको तसव्वुर करोगे, उनके ताल्लुक से समझ लीजिए, अपने तसव्वुर को मजबूत करोगे, उनकी बारगाह में हाजिरी दोगे, आज भी वो समझ लीजिए हमारा कनेक्शन मदीने वाले से जोड़ देंगे, हमारा कनेक्शन रब्बे कबीर से जोड़ देंगे। ये शान औलिया अल्लाह की है, ये मकाम औलिया अल्लाह का। अज़ीज़ान मोहतरम, ये है करामत। लेकिन कोई कह सकता है कि ये हमारे तो समझ में नहीं आ रही है, हमारे तो समझ में नहीं आ रही है कि एक ही लम्हे में वहाँ और एक ही लम्हे में यहाँ। तो हम कहेंगे भाई कुरान की तो मानोगे ना, क्यों कुरान की भी नहीं मानोगे? तो कहेंगे कुरान की मान लेंगे। तो हम कहेंगे पढ़ो सूरह नमल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बिल्कीस का तख्त हमें चाहिए, कोई है जो ला सकता हो? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगा, आऊंगा और बिल्कीस का तख्त उठा ले आऊंगा। कितनी देर में? कहा कि हुजूर आपकी मजलिस खत्म होने से पहले। तफसीरों में है 5 घंटे के आसपास की आपकी मजलिस होती थी, सर्विस। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उरीदु अन अअजल बिही, हमें तो इससे पहले चाहिए। कोई है इतना, कोई है ऐसा जो इससे पहले लेकर आ जाए? अज़ीज़ान मोहतरम, क़ाल इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फुक। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या था? सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह पे एक अल्लाह के वली खड़े हुए, जिनका नाम किताबों के अंदर, तफसीरों के अंदर हज़रत आसिफ बिन बरखिया बताया जाता है। हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर हमें इजाज़त दीजिए, हम लेकर आएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर में लाओगे? अल्लाहु अकबर। आसिफ बिन बरखिया ने कहा हुजूर मैं जाऊंगा भी, मैं आऊंगा भी और बिल्कीस के तख्त को उठाकर भी लाऊंगा। आपकी पलक चमक नहीं पाएगी, उससे पहले सारे काम कर डालूंगा। अगर समझ गए हो तो जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, और फिर कुरान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी नहीं थी कि वो बिल्कीस का तख्त सामने मौजूद, बिल्कीस का तख्त सामने मौजूद। ये तो कुरान है ना भाई, कुरान। अरे जब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली को इतनी शान अता फरमाई है, तो बताओ अल्लाह ने इस उम्मत के
कितनी शान अता फरमाई होंगी, कितनी शान अता फरमाई होंगी, कितना मकाम अता फरमाया होगा। असीदान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझ लीजिए उसके बाद जो है 7 हज फरमाए, आपने 7 हज फरमाए। और फिर जब आखिरी हज किया तो बारगाह रिसालत से फिर आपको रोड मैप दिया गया, फिर बताया गया बदियुद्दीन अहमद अब तुम्हें कन्नौज की सरजमीन पर जाना है, अब तुम्हें कानपुर की सरजमीन पर जाना है। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार वहां से चले, कन्नौज रुके और उसके बाद जो है कानपुर की सरजमीन पर, उस वक्त जो है समझ लीजिए जहां हजरत कुतुबुल मदार आए मकनपुर, उस वक्त वहां कुछ था ही नहीं, वहां कुछ भी नहीं था, वहां सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था। हजरत कुतुबुल मदार कब पहुंचे हैं वहां? हजरत कुतुबुल मदार पहुंचे हैं 818 हिजरी में, 818 हिजरी में पहुंचे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं जब कुतुबुल मदार 228 साल के हो गए थे तब हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। और तोहफतुल मदारिया के अंदर है कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। और इसी के साथ साथ हजरत गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। अज़ीज़ान मोहतरम और उसके बाद 818 हिजरी में हजरत कुतुबुल मदार कहाँ पहुँचे? मकनपुर पहुँचे। मकनपुर की सरजमीन पर जब पहुँचे हैं ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। हजरत कुतुबुल मदार ने अपने बैठने उठने की जगह को तैयार किया और उसके बाद अल्लाह का जिक्र करने लगे। अब उस जंगल में एक देव रहता था, देव, उस देव का नाम था मकना देव, उस देव का नाम था मकना देव। जैसे ही जब वो देव आया और उसने हजरत कुतुबुल मदार को देखा कि ये कौन आ गया है हमारी सल्तनत में, ये कौन आ गया है हमारे इलाके में, दिल में बुरा ख्याल लेकर आया और सोचा अभी मैं इनको यहाँ से भगा देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम दिल में ख्याल ही आना था कि कुतुबुल मदार का एक जिन मुरीद हाजिर हुआ और जिन मुरीद ने एक ऐसा जोर से थप्पड़ लगाया कि मकना देव चारों खाने चित नीचे नजर आया। और उसके बाद उसको कुछ संपट नहीं पड़ रहा था, यार ये थप्पड़ किसने मारा, ये चमाट किसने मारा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है, सामने जो है उनके तो हाथ भी नहीं हिले हैं, वो तो खड़े भी नहीं हुए हैं, फिर ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद जो है फिर उसने बुरा ख्याल लेकर आया, फिर एक चाटा पड़ा अज़ीज़ान मोहतरम और उसके बाद उसे पता लग गया ये जो सामने बैठे हैं ये कोई बहुत शक्तिशाली बैठे हुए हैं, अब मुझे इनसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब तो मुझे इनके ही दामन से जुड़ने की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम अब जो है कदम बढ़ाया है, अब मोहब्बत से कदम बढ़ाया है, अब कदम बढ़ाया है, प्यार से कदम बढ़ाया है। अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने मकना देव को ईमान की दौलत भी अता फरमाई, ईमान की नेमत भी अता फरमाई। और कुतुबुल मदार की ज़ियारत की वजह से अल्लाह ने मकना देव को अपना वली बना लिया, अपना वली बना लिया, ईमान की दौलत भी मिली और विलायत का मकाम भी मिल गया। अज़ीज़ान मोहतरम और उसके बाद हज़रत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकना देव का नाम मकन सरबाज रखा, मकन सरबाज रखा। अज़ीज़ान मोहतरम फिर क्या था, धीरे धीरे लोग आने लगे, धीरे धीरे चाहने वाले आने लगे, धीरे धीरे मुरीदीन जमा होने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम मुरीदीन का एक काफिला जमा हो गया और उसी में हजरत यासीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, ये भी हजरत कुतुबुल मदार के समझ लीजिए मुरीद थे, हजरत कुतुबुल मदार के जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए चाहने वाले थे। अज़ीज़ान मोहतरम हजरत कुतुबुल मदार की बारगाह में हजरत यासीन अर्ज करते हैं, हुजूर अब मुरीदीन ज्यादा हो गए हैं, अब लोग यहाँ पर ज्यादा आ गए हैं, इसलिए हुजूर आपको तो खाने की भी जरूरत नहीं, आपको तो पानी की भी जरूरत नहीं, मगर हुजूर हमें खाने की भी जरूरत है, हमें पानी की भी जरूरत है। ये जो लोग यहाँ पर आते हैं परेशान हो जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को इख्तियार देकर भेजा है, बाइख्तियार बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम
حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا دیا اور عصا دے کر حضرت یاسین سے کہا جاؤ اس عصا کو لے جاؤ اور فلاں جگہ پر کھینچ دینا، فلاں جگہ پر اس عصا سے کچھ لکیریں کھینچ دینا، تمہاری پرابلم سولو ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت یاسین آتے ہیں اور اس عصا کو لے کر اس ندی کے پاس آ کر تھوڑا سا کھینچتے ہیں، عزیزان محترم وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عصا کو پانی پر مارا، اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے بھی چشمے جاری ہو گئے، اس سے بھی چشمے جاری ہو گئے۔ مصر کی سرزمین پر وہ جو چشمے ہیں ان چشموں کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پر کنویں بھی بنا دیے گئے ہیں عزیزان محترم۔ مگر میں یہاں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں پچھلے نبیوں کو عطا فرمائی تھی مصطفیٰ کے صدقے سے، وہ شانیں اللہ نے اس امت کے ولیوں کو بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قطب المدار کا جیسے ہی عصا لگنا تھا پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم وہ چشمہ اتنا بڑھا اور اس کے بعد سمجھ لیجئے وہی چشمہ یاسین ندی کے نام سے معروف ہوا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یاسین ندی کا نام بدلتے اور یا کہ یہ بگڑتے ایسن ندی ہو گیا۔ عزیزان محترم آج بھی وہ ندی جاری ہے، آج بھی وہ ندی بہتی ہے۔ عزیزان محترم کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں جسے بھوت لگ گئے ہوں، جسے سمجھ لیجئے جن آسیب کا اثر ہو اور کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو، وہ صرف دل سے جائے حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں حاضری دے اور اس ندی کے اندر نہلے، قطب المدار کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جن بھوت پلیت کو سب کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار 20 سال مکن پور کی سرزمین پر رہے، 20 سال 818 میں پہنچے تھے اور 838 میں اسی مہینے کی جمادی الاولیٰ کی مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 596 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی جو تبلیغ کی جو عمر ہے وہ 556 سال ہے جو آپ نے ہندوستان کے اندر تبلیغ فرمائی۔ اور آپ نے فرما دیا تھا کہ جو میرے مرید ہیں مولانا حسام الدین المداری وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ عزیزان محترم اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھول بھی جائیں قطب المدار کا سن وفات تو ساکن بہشت اس کے عدد جوڑ لیجئے گا، قطب المدار کی وفات کا سن نکل آئے گا۔ ساکن بہشت مطلب جنت کا رہنے والا۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار کی بہت اونچی شان، میں نے سمجھ لیجئے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا مجھے، اور بہت شارٹ میں یعنی آدھا دماغ اسی میں لگا ہوا تھا کس کو چھوڑوں اور کس کو بیان کروں، ٹھیک ہے نہیں۔ بہرحال بہت ہی مختصر سے انداز میں حضرت قطب المدار کی شان کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر حضرت قطب المدار کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو ان سے سچی عقیدت پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی